بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ تمام؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اور پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اچھی؟ ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اچھی باتوں کے ساتھ اچھی کلاس کی شروعات کریں۔ تو چلیے، آج کی میں آن لائن کلاس میں آپ تمام کا صمیم قلب سے استقبال کرتی ہوں۔ خوش آمدید۔ تو بچوں دیکھیے گا، آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ نظم جگنو کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، نظم جگنو کے اہم نکات کون کون سے ہیں۔ پہلے ہم تخلیق کار کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ یہ نظم کس نے لکھی ہوئی ہے؟ فراق گورکھپوری نے لکھی ہوئی ہے۔ الفاظ و معنی پڑھیں گے۔ پھر تیسرا پڑھیں گے ہم نظم جگنو کو صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ آپ سنیے گا اس نظم کو۔ چوتھا ہم پڑھیں گے نظم جگنو کا خلاصہ، یعنی کہ اس میں کیا بتایا گیا ہوا ہے فراق گورکھپوری نے۔ نیکسٹ پڑھیں گے ہم سوالات کے جوابات کو حل کریں گے۔ آگے آئے گا غیر متعلق الفاظ کی نشاندہی کریں گے۔ پھر مصرعے مکمل کریں گے اور اس کے بعد الفاظ کے ازداد حل کریں گے، اور آخر میں آپ کو کیا دوں گی؟ گھر پر کام۔ یہ بھی ضروری ہے نا بچوں، گھر پر کام بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے آپ؟ یہ تو کرنا ضروری ہے۔ تو آگے بڑھے، دیکھیں گے کیا ہے کہہ کر یہ نظم دیکھ سکتے ہیں آپ جگنو کو۔ یہاں جگنو دکھائی دے رہا ہے، یہ جگنو ایک کیڑا ہے۔ تو اس پر فراق گورکھپوری نے ایک بہترین نظم لکھی ہے۔ یہ ان کی تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ فراق گورکھپوری۔ تو یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ماں کی یاد میں لکھی ایک تاثراتی نظم ہے، یعنی کہ اثر کرنے والی ایک نظم ہے۔ آپ بھی اس نظم کو سنیے گا اور سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نظم میں کتنا اثر، کتنا درد سمایا ہوا ہے، اور آپ تمام کو یہ بہت اثر بھی کرے گی۔ یہ نظم شخصی مرثیہ نہیں کہلاتی، یہ شخصی مرثیہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہوں گے مرثیہ اسے کہا جاتا ہے جو اس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ مرثیہ لفظ رثا سے مشتق ہے، جس کے معنی ماتم کرنا، رونا، آہوزاری کرنا کے ہیں۔ تو مرثیے دو طرح کے ہوتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے۔ شخصی مرثیہ، کربلائی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ اسے کہا جاتا ہے جو کوئی بھی خدمات انجام دے کر انتقال ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اس کے اوصاف کو بیان کرنے کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، کربلائی مرثیہ وہ ہے جو کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں، رفیقوں، ان کے بارے میں یہ مرثیہ، دو طرح کے مرثیے یہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کو یہ نظم ہے، ہم شخصی مرثیے کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس نظم میں ایک پسیر یتیم بچے کا درد سمایا ہوا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر کسے یاد کر رہا ہے؟ ایک شخص اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے۔ شاعر نے جو نظم لکھی ہوئی ہے وہ کتنے برس میں لکھی ہوئی ہے بچوں؟ یہاں دیکھیے گا 20 برس میں انہوں نے یہ نظم ایک نوجوان نے لکھی ہوئی ہے، جس کی سبب کیا ہو گیا؟ بچہ پیدا ہوتے ہی، یعنی کہ شاعر فراق گورکھپوری پیدا ہوتے ہی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ نہ ماں نے اپنے بچے کو دیکھا ہے، نہ بچے نے ماں کو۔ تو یہاں فراق گورکھپوری کی ایک طویل نظم کی ہم تخلیص کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کیا ہے۔ پڑھنے سے پہلے ہم تخلیق کار کے بارے میں جان لیں گے۔ کون ہے تخلیق کار بچوں؟ بجا فرمایا آپ نے، یہ نظم لکھنے والے فراق گورکھپوری ہیں، تو ہم ان کو پہلے جانیں گے۔ تخلیق کار نام رگھوپتی سہائے، قلمی نام فراق گورکھپوری تھا۔ 28 اگست 1896 کو بمقام گورکھپور میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے گا گورکھپور کہاں آئے گا بچوں؟ دیکھیے گا یہاں ہندوستان کا یہ نقشہ ہے، یہاں آپ کو یو پی یعنی کہ اتر پردیش کی کیپٹل سٹی کون سی ہے بچوں؟
माशाअल्लाह, सही कहा, लखनऊ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये गोरखपुर में पैदा हुए हैं। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई, यानी इन्होंने इब्तदाई तालीम, बचपन की तालीम घर पर ही की। उसके बाद इलाहाबाद से FA की तालीम मुकम्मल की। FA का मतलब क्या है बच्चों? FA का मतलब फाइन आर्ट कहा जाता है, जो मैट्रिक के बाद 2 साल पढ़ाया जाने वाला कोर्स को हम FA कहते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। आगरा यूनिवर्सिटी, ये देख सकते हैं आप, ये आगरा की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से उन्होंने MA किया। इंडियन सिविल सर्विस के लिए मुंतखब हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ वो मिलकर काम करना उन्हें गवारा नहीं था। MA का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स को कहा जाता है। आगरा में क्या है बच्चों? देखिएगा, ताजमहल है। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना। देखिएगा, ये ताजमहल किसने तामीर करवाया है? शाहजहां। सही बजा फरमाया। किसके लिए? अपनी बीवी मुमताज़ के लिए बनवाया हुआ है। कभी मौका मिला तो जाके देखिएगा ताजमहल। लेकिन उन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने को तरजीह दी। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़कर ऐसा झंडा लहराए। ये देखिएगा आज किस तरह से हम शान से हमारे हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं। उनका ख्वाब था कि हमारा हिंदुस्तान इस तरह से दिखाई दे, और उसे उन्होंने वैसा ही आज़ादी के साथ, आज़ादी के मतवालों के साथ लड़कर हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने आज़ादी दिलवाई। बहुत सारे लोगों के साथ, गांधी जी वगैरह के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान को इस तरह से आज़ाद हिंदुस्तान बना दिया। देख सकते हैं हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। उन्होंने किताबें जो लिखी हुई हैं वो हस्ब ज़ैल हैं। देख सकते हैं, रूह कायनात, रमज़ो किनायात, गज़लिस्तान, शबनमिस्तान शाया हो चुके हैं। ये इनकी किताबें हैं, और भी बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। इसके साथ गुले नगमा एक बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा मौका मिला तो। गुले नगमा और रुबाइयात का मजमुआ रूप को काफ़ी हद तक शोहरत भी हासिल हुई है। गुले नगमा को उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया हुआ है। ये देख सकते हैं बच्चों आप, ये इस तरह का ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो फिराक उर्दू के पहले शायर हैं जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है या अता किया गया है। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, गालिब अकादमी अवार्ड और ज्ञानपीठ जैसे आला एजाज़ से नवाजा गया है। यहाँ आप इस तरह के एजाज़ देख सकते हैं। ये आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीलेट की डिग्री हासिल की। 3 मार्च 1982 सने ईस्वी को इनका इंतकाल भी हो गया। तो इस तरह से फिराक गोरखपुरी के बारे में हमने जाना। अभी बच्चों आप इस नज़्म को सुनेंगे, नज़्म जुगनू को अफसर मुल्ला साहब ने बहुत ही पुरअसर अंदाज में, अच्छी और आफरीन आवाज़ में पढ़ी हुई है। आप तमाम उसे समाअत फरमाइए, उन्हीं के साथ आप भी पढ़ते जाइएगा, क्योंकि ये नज़्म बहुत तवील है। अगर मैं आपको वक्फ़ा दूंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो चलिए समाअत करते हैं अफसर मुल्ला साहब की प्यारी सी आवाज़ में नज़्म जुगनू को। मेरी हयात में देखी है 20 बरसात, मेरे जन्म ही के दिन मर गई थी माँ मेरी। वो माँ की शक्ल भी जिस माँ की मैं न देख सका, जो आँख भर के मुझे देख भी सके न वो माँ। मैं वो पिसर हूँ जो समझा नहीं कि माँ क्या है।
مجھے کھلائی اور دائیوں نے پالا تھا، وہ مجھ سے کہتی تھی جب گھر کے آتی تھی برسات، جب آسمان میں ہر سو گھٹائیں چھاتی تھی، بوقت شام جب اڑتے تھے ہر طرف جگنو، دیے دکھاتے ہیں بھول بھٹکی روحوں کو، مزہ بھی آتا تھا مجھ کو کچھ ان کی باتوں میں، میں ان کی باتوں میں رہ رہ کے کھو بھی جاتا تھا، پر اس کے ساتھ ہی دل میں کسک سی ہوتی تھی، کبھی کبھی یہ کسک ہوک بن کے اٹھتی تھی، یتیم دل کو میرے یہ خیال ہوتا تھا، یہ شام مجھ کو بنا دیتی کاش ایک جگنو، تو ماں کی بھٹکی ہوئی روح کو میں دکھاتا رہا، کہاں کہاں میری خاطر بھٹک رہی ہوگی، یہ سوچ کر میری حالت عجیب ہوتی تھی، پلک کی اوٹ میں جگنو چمکنے لگتے تھے، کبھی کبھی تو میری ہچکیاں سی بندھ جاتی کہ ماں کے پاس کسی طرح میں پہنچ جاؤں، اور اس کو راہ دکھاتا ہوا میں گھر لاؤں، اور اس کو راہ دکھاتا ہوا میں گھر ہمارے شہر میں آتی ہے اب بھی برساتیں، ہمارے شہر پر اب بھی گھٹائیں چھاتی ہیں، ہنوز بھیگی ہوئی سرمئی فضاؤں میں خطوط نور بناتی ہے جگنوں کی سفید فضائے تیرا میں اڑتی ہوئی یہ قندیلیں، مگر میں جان چکا ہوں اسے بڑا ہو کر، کسی کی روح کو جگنو نہیں دکھاتے، کہاں گیا
बचपन में मुझसे झूठ था सब, मगर कभी कभी हसरत से दिल में कहता हूँ, ये जानते हुए जुगनू नहीं दिखाते चराग, किसी भटकती हुई रूह को, मगर फिर भी वो झूठ ही सही, कितना हसीन झूठ था वो झूठ ही सही, कितना हसीन झूठ था वो, जो मुझसे छीन लिया उम्र के तकाज़े ने। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने अच्छी तरह से नज़्म को पढ़ लिया होगा। तो अब जानेंगे अल्फाज और माने के किस तरह से मुश्किल अल्फाज जो आए हुए हैं उनके माने तलाश करेंगे। पिस्र, पिस्र का मतलब क्या है बच्चों? बेटे को कहा जाता है। कसक, कसक यानी कि हल्का सा दर्द। तीसरा आएगा फ़ज़ाए तेरा, यानी कि अंधेरी फ़ज़ा को कहा जाता है। चौथा हुक यानी कि कराह। खिलाई, खिलाई यानी कि बच्चों को खिलाने वाली औरत या उसे दाया भी कहा जाता है। ऊट, आड़, पर्दा, पर्दे को ऊट कहा जाता है। सफ यानी कि खतार को कहा जाता है, लाइन जिसे कहते हैं। तकाज़ा, तकाज़ा यानी कि तलब। और आखिर में आएगा हसरत, हसरत यानी कि तमन्ना, आरज़ू। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका खुलासा, ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि इस नज़्म में फ़िराक़ गोरखपुरी ने क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है कहकर। बच्चों बहुत आसान है, देखिएगा। शायर फ़िराक़ गोरखपुरी इस नज़्म के लिखने वाले शायर हैं। ये एक तासुराती यानी कि असर करने वाली नज़्म है जिसमें एक यतीम बच्चे का दर्द समाया हुआ है। शायर ने अब ये नज़्म कितने बरस में लिखा हुआ है बच्चों? ये याद रखना आपको बेहद ज़रूरी है। ये नज़्म उन्होंने 20 साल की उम्र में लिखा हुआ है। देखेंगे वो क्या लिखते हैं इस नज़्म में कहकर। शायर कहता है कि मैं ओ बदनसीब हूँ जिसके पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। ना मैंने अपनी माँ को देखा, ना माँ ने मुझे। मुझे किसने पाला बच्चों? दाइयों और खिलाइयों ने पाला था। क्योंकि वो मेरी माँ का इंतकाल हो गया था तो मुझे किसने सहारा दिया? मेरे दाइयों और खिलाइयों ने। दाइयाँ किसे कहते हैं? यानी कि पिलाने खिलाने वालों को, और खिलाई यानी कि खिलाने वालों को दाई और खिलाइयों ने पाला हुआ था। आपको याद रखना है बच्चों, शायर को किसने पाला हुआ था? दाइयों और खिलाइयों ने पाला हुआ था। रात को, क्योंकि बच्चे जब बहुत रोते हैं तो क्या करते थे वो दाई और खिलाई? रात को मौसम बरसात में जब जुगनू, देख सकते हैं आप जुगनू रात को कितने दिखाई दे रहे हैं, तो जब जुगनू दिखाई देते थे तो वो कहती थी, भूली भटकी रूहों को जुगनू रास्ता दिखाते हैं कहकर। जुगनू में क्योंकि एक क्षमा रहती है जिससे वो रास्ता दिखाते हैं कहकर। ऐसे ही सरसरी तौर से किसने कहा था? यानी कि यहाँ दाई और खिलाई जो पालने वाले थे, जो देखने वाले थे फ़िराक़ गोरखपुरी को, उन्होंने झूठ ऐसे ही बता दिया था। हम भी बच्चों को कभी कभार कहते हैं ना, बूढ़ा आ जाएगा सो जाओ कहकर, तो उस तरह से इन्होंने भी, और कई मर्तबा परियों की कहानियाँ बताते हैं बच्चों को तो बच्चे सो जाते हैं सुनकर। तो उस तरह से यहाँ दाई और खिलाइयों ने भी क्या कहा था इन्हें कि भूली भटकी रूहों को जुगनू राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कहकर। तो उस छोटे से बच्चे ने क्या समझ लिया था? सच होगा शायद
कि मेरी माँ की भूली भटकी रूह को कौन रास्ता दिखाएंगे बच्चों, यानी कि ये उड़ते हुए जुगनू कहकर उन्होंने सोच लिया था। और कह रहे हैं मुझे उनकी बातों को सुनकर मज़ा भी आता था, बहुत छोटा था तो मुझे मज़ा भी आता था और मैं उनकी बातों में खो भी जाता था, मगर उसके साथ ही कभी कभी मुझे माँ की भी बहुत याद आती। ये ज़रूर है कि मुझे दाई और खिलाई बहुत प्यार करते थे, मगर फिर भी मुझे कभी कभार मेरी माँ की याद सताती थी और माँ की याद रुलाती थी। और ये भी सोचता था कि ये शाम काश मुझ यतीम को एक जुगनू बना देती तो मेरी माँ की भटकी रूह को मैं रास्ता दिखाता। देखिए बच्चा कितना खुश हो रहा है कि काश मैं भी एक जुगनू बन जाऊं और मेरी माँ की भूली भटकी रूह को रास्ता दिखाऊं कहकर। सोचते हैं फिराक गोरखपुरी कि पता नहीं वो मेरी खातिर कहाँ कहाँ भटक रही होगी। ये तमाम बातें सोचकर फिराक गोरखपुरी की हालत अजीब सी हो जाती है। साथ में पलकों के सामने बहुत सारे जुगनू दिखाई देते थे, मगर आजकल शहरों में तो जुगनू दिखाई नहीं देते। खरियों में जाइएगा जुगनू बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो शायर भी यहाँ कह रहा है मेरी पलकों के सामने जुगनू दिखाई देते थे, माँ को याद करके मैं इन जुगनुओं के साथ बहुत रोता था और कभी कभार हिचकियाँ भी आ जाते थे और सोचता था कि माँ के पास किस तरह पहुँच जाऊँ और उसकी भूली भटकी रूह को मैं रास्ता दिखाऊं। और फिर कहने लगते हैं मेरे शहर में अब भी बरसातें आती हैं। देख रहे हैं आप तस्वीर में बरसातें आती हैं, घटाएं यानी कि बादल वगैरह छाते हैं और सुरमई फ़ज़ा भी आती है, अंधेरी अंधेरी फ़ज़ा हवा भी आती है। जब जुगनों की सफ़ों को मैं देखता हूँ तो ये गुमान होता है कि गोया अंधेरी फ़ज़ाओं में कंदीलें उड़ती फिर रही हैं। यानी कि शायर को क्या गुमान होता है कि जुगनों की सफ़ों में कंदील, यहाँ देख सकते हैं आप, ये कंदील हैं, शमा हैं, तो इस तरह से उड़ रहे हैं कहकर उसे गुमान होता है। आखिर में शायर कहता है मगर अब मैं 20 बरस का हो गया हूँ और ये जान चुका हूँ कि जुगनू किसी को रास्ता नहीं दिखाते और बचपन में जो दाइयों ने कहा था कि भूली भटकी रूहों को जुगनू रास्ता दिखाते हैं वो सब झूठ था, फरेब था, मगर वो झूठ ही सही लेकिन हसीन झूठ था जिसको छीन लिया अब उम्र के तलब ने कहकर। इस तरह से फिराक गोरखपुरी एक तवील नज़्म को बहुत अच्छे अंदाज में ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये समझ में भी गया होगा। तो देखेंगे बच्चों, अभी मैं कुछ सवालात करूँगी, क्या आप हल करेंगे? देखेंगे किस तरह से हल करेंगे कहकर। शायर ने उम्र के किस हिस्से में ये नज़्म लिखी? सोचिए सोचिए, यहाँ सोच रहे हैं लड़कियाँ तभी तैयार हो गई हैं, सोच रही हैं, आप भी सोचिएगा। शायर को किसने पाला था? तीसरा, दाई की बात सुनकर शायर के दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ, क्या सोचा उसने? शायर की ख्वाहिश क्या थी, वो क्या करना चाहता था, वो क्या बनना चाहता था? और आखिर में जुगनुओं की सफ़ों पर किस बात का गुमान होता था? सोचिए बच्चों, सोचिए, मैं कुछ वक्फा दे रही हूँ आपको। माशाअल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने सही जवाबात तलाश भी कर लिए होंगे। देखेंगे सही जवाबात क्या हैं? तैयार हैं आप तमाम? तो चलिए देखते हैं सही जवाबात। तो ये रहे जवाबात। शायर ने उम्र के 20 साल में ये नज़्म लिखी। तो दूसरा सवाल आएगा, शायर को किसने पाला था? किसने बच्चों? माँ मर गई थी तो किसने पाला हुआ था? दाइयों और खिलाइयों ने। सही जवाब। तीसरा, दाई की बात सुनकर शायर के दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ? जवाब, दाई की बात सुनकर शायर के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं भी एक जुगनू होता। आगे आएंगे, शायर की ख्वाहिश क्या थी?
शाहिर की ख्वाहिश एक ही थी कि काश मैं भी एक जुगनू बन जाऊं और मेरी माँ की भूली भटकी रूह को रास्ता बताऊं। तो ये भी आसान जवाब है। इसके बाद आएगा आखिरी है, जुगनुओं की सफ़ों पर किस बात का गुमान होता था। यानी कि यहाँ जवाब है, जुगनुओं की सफ़ों को देखकर ये गुमान होता था गोया अंधेरी फ़ज़ाओं में खंदीलें उड़ती फिर रही हों। तो ये बहुत आसान है। तो इस तरह के सवालात और जवाबात उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने हल कर लिया है। तो जिन्होंने सवालात के जवाबात ठीक दिए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, शाबाश। ये रहा आपका इनाम, कबूल कीजिए। अच्छा लगा इनाम? हाँ, तो आगे बढ़ेंगे और इनामात हासिल करने के लिए। देखिएगा बच्चों, इसे भी अभी हल कीजिए, आपकी किताब में दिया गया हुआ है, देख लीजिए। गैर मुताल्लक़ अल्फाज की निशानदही कीजिए। यहाँ गैर अल्फाज मैं आपको यहाँ तस्वीर भी डालकर हूँ ताकि आपको बहुत आसानी हो कहकर। तो देख लीजिएगा किस तरह से हैं कहकर। पहला है जुगनू, तमाम जानते हैं जुगनू है। खंदील चराग, यानी कि खंदील चराग, आप ये तीन अल्फाज में आपको एक अल्फाज को अलहदा करना है। देखिएगा वो कौन सा है कहकर मैं यहाँ बता रही हूँ बच्चों। खंदील का माना भी चराग को ही कहा जाता है, शमा चराग को ही कहा जाता है, चराग आप जानते ही हैं। दूसरा बरसात, घटा, ज़मीन, यहाँ कौन सा अलहदा करना है बच्चों? सोचिएगा यहाँ कौन सा अलहदा करना है। तीसरा राह, मंजिल, जंगल, यहाँ कौन सा? आप अपने दिमाग से सोचिएगा, इन तस्वीर को देखिएगा कि क्या है इसमें कहकर। सुरमई, देखिएगा, तारीक, सुर्ख, ये किसे कहा जाता है? ये तलाश कीजिएगा तस्वीर से, आपको सही जवाबात मिल जाएंगे। इसे अलहदा करना है आपको। और आखिर में आएगा मौत, जवानी, बचपन, यहाँ किसे अलहदा करना है आपको। ये यहाँ जो भी गैर मुताल्लक़ लफ्ज़ है उसे अलहदा कर दीजिएगा। हो गया होगा शायद, उम्मीद करती हूँ। बहुत आसान भी है और आप तो बहुत चालाक बच्चे भी हैं माशाअल्लाह। तमाम आप सवालात और जवाबात हल करने वाले हैं, तो ये भी चुटकियों में हल कर देंगे। देखिएगा ये रहे जवाबात। पहला तो जुगनू को अलहदा करना है, क्योंकि बच्चों खंदील और चराग दोनों एक ही के माने में आते हैं। बरसात, घटा, घटा यानी कि बादल, बादल से बरसात आते हैं, तो हम लोगों को कौन सा अलहदा करना है? ज़मीन। राह, मंजिल, तो यहाँ आपको कौन सा अलहदा करना है? जंगल को अलहदा करना है। आएगा सुरमई, तारीक, सुरमई का मतलब सुरमे से लिया गया है सुरमई, तो सुरमा कौन से रंग का रहता है? काला। तो यहाँ तारीक को भी कहते हैं, अंधेरे को कहते हैं। अंधेरा भी कैसा रहता है? काला ही रहता है। तो दोनों एक ही के माने में आ गए। सुर्ख कहते हैं लाल को, तो ये लाल रंग को हम लोगों को अलहदा करना है। यहाँ मौत आया, जवानी, बचपन, तो हम लोगों को यहाँ कौन सा अलहदा करना है? मौत को, क्योंकि जवानी और बचपन में ज़िंदगी है, मौत यानी कि फ़ना हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो मौत को अलहदा करना है। तो ये घर पर काम के लिए मैं आपको ये काम सौंप रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसके सही जवाबात हल करके अपनी बुक में लिख लेंगे। देखिएगा बच्चों, पहला सवाल है, आपको इन सवालात के जवाबात लिखिए। शायर बचपन के बहलावे की बातों को हसीन झूठ क्यों कहता है? क्यों कहता है आपको वो लिखना है। दूसरा सवाल आएगा आपको, इस नज़्म में यतीम बच्चे की बेचैनी का इजहार किस तरह किया गया है? तो आपको मैं ये दो सवालात दे रही हूँ, इसे आपको हल करना है। और एक दूसरी सरगर्मी दे रही हूँ आपको बच्चों। माँ दौरे हाजिर के शायर मुनव्वर राना का पसंदीदा मौजू है, इनके अशार को जमा कीजिए। यानी कि इनके अशार को मुनव्वर राना का पसंदीदा मौजू माँ है। माँ एक बहुत खूबसूरत नाम है, इसीलिए तो अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दिया। माँ का मुकाम बहुत बुलंद है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसीलिए माँ बाप दोनों हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। माँ बाप के जिनके सर पे हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। इसीलिए दुआ कीजिएगा हम तमाम के वालिदैन को अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र दराज़ी अता करे, और जिनके माँ बाप में से जो भी इंतकाल हो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करें। आमीन। इस दुआ के साथ
آج کی کلاس کا میں اختتام کرتی ہوں. ابھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.